Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, fractions. Fractions and fractional numbers. A fraction comprises of two numbers separated by a horizontal line. The number above the horizontal line is called numerator and the number below the horizontal line is called denominator of the fraction. That is, fraction is equals to numerator upon denominator. For example, in fraction 8 by 9, numerator is 8 and denominator is equals to 9. Now observe the given figure. Here, out of noun equal parts, 8 parts are shaded. In terms of fraction, we can write the shaded portion as 8 by 9. And in terms of fractional numbers, shaded portion represents by 8/9. Therefore, 8 by 9 is a fraction and 8/9 is a fractional number. We can define fractions in three ways. देखिए, आपका कोई भी नंबर है, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया 8 by 9. ये बार से ऊपर वाला जो नंबर होता है ये न्यूमरेटर है एंड नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है. जैसे आपको ये दिया है इक्वल 9 इक्वल पार्ट्स हैं जिसमें से 8 पार्ट आपके शेडेड है. ओके, 8 by 9 इज द फ्रैक्शन एंड इसको हम लिखते हैं 8/9. ओके, सो 8/9 इज द फ्रैक्शनल नंबर. अब फ्रैक्शंस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ होल which is defined as a single object or a group of objects which can be divided into equal parts. For example, take a cake and divide it in equal parts. Then cake represents a whole and each part represents a fraction. फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ होल का मतलब क्या है कि होल एक सिंगल ऑब्जेक्ट और उसमें या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस केक, इसको हम इक्वल पार्ट्स में इसके पीसेस कर सकते हैं. इफ यू डिवाइड द केक इनटू 4 इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फ्रैक्शन 1/4 एज शोन इन फिगर 1. देखिए, अगर हमने इसके इक्वल पार्ट्स किए 4 तो ये 1/4, इसके 6 इक्वल पार्ट्स किए तो 1/6, अगर इसके 8 इक्वल पार्ट्स किए हैं तो 1/8 एंड अगर इसके 10 इक्वल पार्ट्स किए हैं तो 1/10 और अगर इसके 12 इक्वल पार्ट्स किए हैं तो देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1/12. नेक्स्ट इज फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ ए कलेक्शन और ग्रुप. एक फ्रैक्शन है पार्ट ऑफ कलेक्शन या फिर ग्रुप का. जैसे कि अ ग्रुप ऑफ 15 बॉल्स, वी कैन अरेंज 15 बॉल्स as shown and divide them into 5 equal parts. 15 balls है, उनको equally distribute किया गया है. देखिए, each part contains 3 balls. If we shade 2 parts out of 5 parts, then we represent it in fraction as 2/5. Here, the numerator 2 represent 2 parts shaded, which are equal to 2 into 3 is equals to 6 balls. And denominator 5 represents all the 5 parts which are equal to 5 into 3 is equals to 15 balls. Hence, a collection or a group is considered with 2 or more whole objects which can be divided in equal parts and a part of this collection is called fraction. अब ये देखिए, आपका ये collection है 15 balls का, राइट? इसमें से shaded parts कितने हैं आपके? अगर आप इस तरह से देखेंगे तो 2, इस लाइन में 2 and 2. So 2/5 इसका क्या होगा आपका? Fraction. Fraction as a part of division, we can write 5 divided by 7 as 5/7, which is a fraction. अच्छा, division का जो part होता है ना, that is also fraction. जैसे कि 5 को divide करना है 7 से, तो 5/7, ये भी आपका क्या है? Fraction है. Example देखते हैं, write a fraction for each of the following. 2/8. 2/8 is 2/8. Next is 1/5. 1/5 is 1/5. इसी तरह से आपका है 3/7 यानी 3/7. Example 2, write the fractional number for each of the following. अब हमें fractional number लिखना है. fraction आपको already given है. देखिए, इसे हम किस तरह से read करते हैं? 4/5 को 4/5. 8/20 is 8/20th and 10/18 is 10/18. Okay children? चलिए, move on to next number. अब क्या है? सारे examples हैं. Okay. And 10/18 is 10/18th. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. राइट द फ्रैक्शन ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर्स. 1/7. 1/7 is 1/7. Okay, next part is 7/12. 7/12 is 7/12. Question number 2, write the fractional number for each of the following fraction. फ्रैक्शन नंबर लिखना है. 7/10, 7/8. 1/3, 1/3. Question number 3, write the numerator and denominator of each of the following fraction. This is very easy. 4/7, 4 is numerator and 7 is denominator. Okay children, बाकी की exercise आप खुद से करेंगे. Types of fractions. अब fractions के types जानते हैं. Like fractions. Fractions with the same denominator are called like fraction. जिन fraction के denominator same होते हैं वो होते हैं like
fractions. Unlike fractions, fractions with different denominators are called unlike fraction. जिन fractions के denominator अलग अलग होते हैं वो होते हैं आपके unlike fractions. Unit fraction, fractions with numerator as 1 are called unit fraction. जिनके numerator 1 होते हैं वो आपके unit fractions. Proper fractions, fractions whose numerator are less than the denominators are called proper fraction. जिनके numerator उनके denominator से छोटे होते हैं वो होते हैं proper fraction. When we represent a proper fraction on a number line, it always lies to the left of 1. और कभी भी अगर हम proper fraction को number line में represent कर रहे हैं तो 1 से वो left side में आएगा. Okay? Next is improper fraction. Fractions whose numerators are greater than or equal to the denominators are called improper fraction. और आपके improper fraction क्या होते हैं? जिनके numerator denominator से बड़े होते हैं. Okay? Where we represent an improper fraction on a number line, it always lies to the right of 1. अगर हम improper fraction को number line में represent करते हैं तो वो हमेशा 1 की right side आएंगे. Okay, next है mixed fraction. A fraction which is a combination of a whole number and a proper fraction is called a mixed fraction. Mixed fraction में क्या होता है? आपका एक whole number होता है और एक proper आपका fraction होता है. Okay, all the improper fractions can be written in the form of mixed fraction. जितने भी आपके improper fractions होते हैं उन्हें हम mixed fraction में कर सकते हैं. Okay, mixed fraction आपका एक whole part and एक part fraction में. Next is conversion of an improper fraction and a mixed fraction. Conversion of an improper fraction into a mixed fraction. To convert an improper fraction into a mixed fraction, divide the numerator by the denominator. The quotient obtained is the whole number, the remainder is the numerator and the divisor is the denominator. अब आपको improper fraction को change करना है mixed fraction में. कैसे करेंगे? Let's have a look. So here is the fraction 16 by 3. Okay, जब आपने 16 को 3 से divide किया, ये आपका गया 5 पे. ओके ओके सो क्वोशिएंट आपका क्या है 5. ये आपका बनेगा होल नंबर. ओके आपका जो रिमाइंडर है ये आपका बन जाएगा न्यूमरेटर एंड जो आपका डिवाइजर है वो आपका बन जाएगा डिनोमिनेटर. सो ओके रिमेंबर दैट टू चेंज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन द फॉर्मूला इज, आपको फॉर्मूला भी दिया गया है देखिए, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. ओके नाउ कन्वर्जन ऑफ ए मिक्स फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है उसे इम्प्रॉपर में चेंज करना है. कैसे करेंगे? देखिए, टू कन्वर्ट अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द डिनोमिनेटर, एड द न्यूमरेटर टू द प्रोडक्ट. दिस एडिशन गिव्स द न्यूमरेटर ऑफ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, द डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम. देखिए कैसे करेंगे, चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं. आपके पास है 2 3/4. आप क्या करेंगे? देखिए आपके पास जो होल नंबर है उसे आपको मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के साथ. ओके फिर जो आंसर आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें आप न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, यानी कि 2 4 8 प्लस 3 एंड डिनोमिनेटर आपका सेम ही रहेगा. सो 11/4. रिमेंबर दैट to change a mixed fraction into an improper fraction, the formula is whole number into denominator plus numerator upon denominator. ये आपका फॉर्मूला है. ओके चलिए देखते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन. अब नंबर लाइन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे? सपोज वी हैव टू रिप्रेजेंट 2/5 ऑन द नंबर लाइन. फॉर द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड. सबसे पहले है ड्रॉ अ नंबर लाइन. आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. इसके बाद आप क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले आपने जैसे ये नंबर लाइन है ये ड्रॉ कर दिया, राइट. इसके बाद आप क्या करेंगे? स्टेप 2, सिंस 2/5 is less than 1, so it lies between 0 and 1. Divide 0 to 1 into 5 equal parts. Okay. अब आपको बताया था मैंने कि जैसे कि आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो हमेशा 1 से कम होगा. ओके सो 2/5 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन विच इज लेस देन 1, सो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा. नेक्स्ट स्टेप इज टेक 2 सच पार्ट्स फ्रॉम 0. और इस तरह से आपने 0 से 2 पार्ट्स ले लें तो ये 2/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है. देखिए चलिए देखते हैं एक बार. चलिए हियर इज अ नंबर लाइन, यू हैव टू रिप्रेजेंट 2/5. ओके 0 1 2 -1 -2. 2/5 जो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमेशा 1 से कम होगा. दैट मीन्स 0 और 1 के बीच में होगा. तो आप ये डिनोमिनेटर 5 है तो उसके 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 and 5. सो 2/5 इज 1 2. दिस इज 2/5.
Representation of a mixed fraction on the number line. Suppose we have to represent 2 1 by 4 on the number line. For this, following steps are followed. Since we know that 2 1 by 4 lies between 2 and 3, because the whole number in the fraction is 2, so the fraction is greater than 2 and less than 3. So divide the gap between 2 and 3 into 4 equal parts. Step 2, take one such part after 2. अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको गिवन है 2 1 by 4, इसको आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है. सबसे पहले 2 इज द होल नंबर. ओके, तो जो फ्रैक्शन है इसका मतलब वो 2 एंड आपका जो 3 है उसके बीच में आएगा, यानी कि 2 1 by 4 आपके 2 एंड 3 के बीच में आएगा. सो फिर आपने क्या करना है, 2 एंड 3 के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स करने, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका 4 है. इसके बाद आपका क्या है 1 by 4. तो आपका जो 2 के बाद नेक्स्ट 1 है, तो ये आपका शो कर रहा है 2 1 by 4. Some important facts about the fraction. If the numerator of a fraction is smaller than the denominator of the fraction, then the fraction is less than 1. If the denominator of a fraction is equal to the denominator of the fraction, then the fraction is equal to 1. अगर आपका जो न्यूमरेटर है किसी भी फ्रैक्शन का वो स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन हमेशा आपका कम 1 से कम होगा. अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है तो आपका क्या होगा, फ्रैक्शन 1 होगा, इक्वल होगा 1 के. If the numerator of a fraction is greater than the denominator of the fraction, then the fraction is more than 1. ये आपको पॉइंट्स पहले भी बताए थे कि अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो फ्रैक्शन 1 से बड़ा होगा. ओके, चलिए नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है विच इज ग्रेटर, ये आप खुद करेंगे. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. देखिए 10 by 9 आपका ऊपर न्यूमरेटर स्मॉलर है एंड डिनोमिनेटर बिगर है, तो ये आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, नेक्स्ट 2 by 9, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन. 8 by 6, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. वाई? क्योंकि न्यूमरेटर आपका बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है. क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन इट. 1 by 4 और 5 by 8 को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में. तो चलिए करते हैं. ओके, सबसे पहले आप 1 by 4 को रिप्रेजेंट करेंगे. तो 1 by 4 आपका कहाँ पे होगा, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपका ये 0 and 1 के बाद के बीच होगा. सो 0 and 1. आपको 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, 1 2 3 and 4. 1 by 4 इज दिस, 1 by 4. नेक्स्ट इज 5 by 8. 5 by 8, 0 and 1. 8 पार्ट्स करेंगे आप, बिकॉज डिनोमिनेटर इज 8. 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस 8. 5 1 2 3 4 5. दिस इज 5 by 8. एंड रिमेंबर दैट ये जो डिविजन है इक्वल होने चाहिए. ओके, जब आप पेंसिल से और स्केल का यूज करेंगे देन दीज डिविजन शुड बी इक्वल. अभी ये थोड़े से अनइक्वल है. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है. तो फर्स्ट इज 2 3 by 4. 2 3 by 4. अब आपके पास ये मिक्स्ड नंबर है, इसे आपको क्या करना है नंबर लाइन में. देखिए 2 होल है, दैट मीन्स ये नंबर जो है आपका 2 and 3 के बीच में आएगा. तो अब आप 2 and 3 1 0. सो आपको कितने पार्ट्स इक्वली डिवाइड करना है, 4. 1 2 3 4 and 3 1 2 3. So this is 2 3 by 4. Equivalent fractions. Look at the given rectangle. We divide it into 2 equal parts and shade one part to get 1 by 2 of the rectangle. Shade it. If we divide the same rectangle into 4 equal parts, then to shade half of its rectangle, we have to shade 2 parts. So we notice that 1 by 2 is same as 2 by 4. Try to divide the same rectangle into an even number of equal parts and work out how many parts to shade to get 1 by 2 of the rectangle shaded. देखिए आपके पास rectangle है, पहले उसको 2 parts में divide किया तो 1 by 2 आया. जब उसको 4 parts में divide किया तो 2 by 4. ओके, इसके अलावा इसको अगर आप और डिवाइड करेंगे, जैसे 6 पार्ट्स में किया तो आप उसके 3 पार्ट्स को शेड करेंगे, 8 पार्ट्स में डिवाइड किया 4 पार्ट्स को शेड करेंगे. तो ये सारे ही जो आपके फ्रैक्शंस होंगे ना, 1 by 2, 2 by 4, 3 by 6, 4 by 8, ये सारे ही इक्वल है. एंड ऐसे फ्रैक्शंस को बोला जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. सिंस द अबव फ्रैक्शंस आर इक्वल इन वैल्यू, सो दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. हैज 2 or more fractions are called equivalent fractions if they have same value.
दो या दो से ज़्यादा जो फ्रैक्शंस हैं उनकी अगर वैल्यू इक्वल है तो हम उन्हें बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। प्रॉपर्टी 1, इफ वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर and the denominator of a fraction by the same number other than 0, we get an equivalent fraction. Property 2, if we divide both the numerator and the denominator of a fraction by the same number other than 0, we get an equivalent fraction. अच्छा, प्रॉपर्टी 1 क्या है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन के सेम नंबर से तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम डिवाइड करें न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। प्रॉपर्टी 3, इफ टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन, अगर दो फ्रैक्शंस आपकी इक्विवेलेंट है द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन इनटू डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन इनटू न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन। Remember that the third property of equivalent fractions is used to check whether the two given fractions are equivalent or not. ये जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है ना, एक्चुअली ये चेक करने के लिए की जाती है कि ये जो फ्रैक्शंस हैं इक्विवेलेंट हैं या फिर नहीं है। ओके, conversion of unlike fractions into like fractions. To convert unlike fractions into equivalent like fractions, convert the denominators of each unlike fraction into a denominator which is equal to the LCM of all the denominators of the given fractions. अगर आपको unlike fraction को like fractions में चेंज करना तो क्या करेंगे आप? चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है 2/3, 5/6, 1/9 को like fraction में करना है तो कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले 2/3, 5/6 एंड 1/9, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं आप इनका LCM ले लीजिए। LCM ऑफ 3, 6, 9, अब तीनों का जब आप LCM लेंगे तो तीनों का LCM आएगा 18। ओके, अब 18 कैसे करना है? अब हमें इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 18 करने हैं। कैसे करेंगे? जैसे 2/3, 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 18 आए? 6, तो हमें न्यूमरेटर को भी 6 से करना पड़ेगा। सो दिस इज 12/18। नाउ 5/6, 6 की टेबल में 18 आता है 3 टाइम्स, तो 5 को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15/18। इसी तरह से आपका है 1/9, 9 की टेबल में आता है आपका 18 2 टाइम्स, इसे भी आप 2 करेंगे, सो 2/18। तो ये आपके जो हैं अब आपके क्या हैं, ये लाइक फ्रैक्शन में हो गया। Simplest form of a fraction is said to be in the simplest form or lowest form if its numerator and denominator do not have common factor other than 1. फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? जब इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 के अलावा कोई भी फैक्टर ना हो। ओके, so let's check out steps to convert a fraction into the simplest form. Find the HCF of the numerator and the denominator of the given fraction. Divide the numerator and denominator by their HCF. आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप इनका HCF निकाल लीजिए। ओके, और उसके बाद डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उस HCF से। देखिए जैसे कि आपका है 8/81, इन दोनों का HCF आया 9। अब आपने क्या करना है? 18 और 81 को डिवाइड कर देना है 9 से। ओके, 2/9 आएगा। और अगर आप 2/9 को देखेंगे, इनका HCF निकालेंगे ना, तो इनका HCF होगा 1। ओके, तो इसका मतलब ये आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, कैसे पता चलेगा? चलिए देखिए, सबसे पहले आपका 3/7 एंड 6/14, 3/7 एंड 6/14। देखिए ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। जब आप इनका HCF निकालेंगे तो आपका HCF आएगा 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए आप इसे। 3/7, क्या ये दोनों इक्वल हैं? ऑफ कोर्स ये दोनों इक्वल हैं। ओके, नेक्स्ट इज 4/8 एंड 3/9, 4/8 एंड 3/9। इसे आप कट करेंगे, 3 1s 3 3s, 4 1s 4 2s, ये दोनों इक्वलेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको के पास जो फ्रैक्शन दिया है इनके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, सो यू हैव फर्स्ट फ्रैक्शन 4/5, 4/5 दिया है। अब नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को भी, तो 10। नेक्स्ट 4 को 3 से करेंगे 12, 5 को 3 से करेंगे 15। नेक्स्ट 4 को 4 से करेंगे 16, 5 को भी 4 से करेंगे तो 20। नेक्स्ट 5 को 5 से करें, 4 को आप किससे करेंगे? 5 से, तो आपका आएगा 20 एंड 5 को 5 से करेंगे तो 25। ओके, और आपसे कितने पूछे हैं?
5 नेक्स्ट, ओके। तो 1 2 3 4 और एक और होगा, तो 4 को आप किससे करेंगे, 6 से, तो 24, एंड 5 को आप करेंगे 6 से, तो 30। ओके चिल्ड्रन, बहुत ईजी है ये, इसे आप खुद प्रैक्टिस करेंगे अब। Question number 3, write the fraction equivalent to 2/5 with numerator 12. अब आपके पास 2/5 है एंड आपको क्या करना है, इसमें न्यूमरेटर आपका होना चाहिए 12। तो कैसे करेंगे, देखिए 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 12/6, तो हमें 5 को भी 6 से करना पड़ेगा, यानी 12/30। इसी तरह से नेक्स्ट है आपके पास 3/5 विद डिनोमिनेटर 3/5 विद डिनोमिनेटर 25। डिनोमिनेटर को 25 करना है तो कैसे करेंगे, 5 की टेबल में कहाँ पे आता है 25, 5 पे, तो आपको न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। Comparison of fractions. Comparison of like fractions. Between two like fractions, the one with the greater numerator is greater. For example, if we have to compare 4/5 and 3/5, then 4/5 will be greater than 3/5. It can be shown by the diagram as follows. अगर हम like fractions को compare कर रहे हैं तो जिसका numerator बड़ा होगा वही आपका बड़ा fraction होगा, ओके। जैसे इसमें देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है, तो इसमें आपका 4/5 इज ग्रेटर देन 3/5। We observe the greater the numerator, greater is the shaded portion, hence the fraction 4/5 will be greater. Comparison of the fraction with same numerator. Between the two fractions with the same numerator, the one with the smaller denominator is greater. अगर numerator same होगा तो क्या होगा, जिसका denominator छोटा होगा वो बड़ा होगा। For example, आपके पास है 2/3 and 3/5, तो आपका 2/3 greater होगा क्योंकि 2/3 में denominator आपका छोटा है। कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर। देखिए अभी हमने पढ़ा कि न्यूमरेटर सेम हो तो कौन सा बड़ा होगा, डिनोमिनेटर सेम हो तो कौन सा बड़ा होगा, बट अगर डिफरेंट न्यूमरेटर और डिफरेंट डिनोमिनेटर के तो क्या करेंगे, देखिए दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर कंपेयर्ड बाय टू मेथड्स। इन्हें दो मेथड से किया जाता है। फर्स्ट, by converting the fractions into like fractions, convert the given fractions into like fractions with the denominator equal to LCM of the denominators of the given fractions, then compare them as we do in like fractions. सबसे पहले आप उसे like fractions में convert करेंगे। जैसे suppose we have to compare 3/5 and 6/7, then first of all convert the following fractions into like fractions as follows. आपके पास क्या है, 3/5 and 6/7, आप इन्हें क्या करेंगे, 3/5 and 6/7, आप एलसीएम लेंगे सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, तो 5 and 7 का जो एलसीएम होगा वो आएगा 35। चलिए अब 3/5 35 करने के लिए 7 से, तो यहाँ भी 7 से 21/35। इसी तरह से 6/7 35 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 30/35। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि दिस फ्रैक्शन इज बिगर, यानी ये फ्रैक्शन किससे बना है, आपके 6/7 से। ओके, ये था आपका फर्स्ट मेथड। सेकेंड इज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इफ a/b and c/d are two fractions, then if ad is greater than bc, then a/b is greater than c/d. If AD is less than BC, then A/B is less than CD. If AD is equals to BC, then A/B is equals to CD. देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, A B C D, आप A को D से मल्टीप्लाई करेंगे, B को C से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर AD आपका ग्रेटर आता है BC से, then that means आपका A/B बड़ा है, और अगर आपका BC बड़ा आता है दैट मीन्स आपका AB CD से छोटा है, और अगर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आता है दैट मीन्स दोनों ही फ्रैक्शंस जो हैं वो आपके क्या है, इक्वल है। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। रिप्रेजेंट 1/11, 3/11, 5/11, 2/11, 6/11, 8/11 and 9/11 on the number line. Also put appropriate sign greater than or less than between the following two fractions. सबसे पहले आपको इनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, जैसे आप खुद करेंगे, और अब आप यहाँ पे बताएंगे कौन सा ग्रेटर है। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो कौन सा बड़ा होगा, ऑफ कोर्स जिसका न्यूमरेटर बड़ा है। इसी तरह से 5/11 और 4/11 में से कौन सा बड़ा है, 5/11।
क्वेश्चन नंबर 2 इज कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट अप्रोप्रिएट साइन। इसमें भी आपको साइन लगाने कौन सा बड़ा है। देखिए 1/6 एंड 5/12। अब इसमें ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर, तो आप कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए 6 एंड 12 का एलसीएम आएगा 12, तो 1/6 इसको 12 करने के लिए 2 से करेंगे, इसे भी 2 से, 2/12 एंड 5/12 तो आपका ऑलरेडी 12 है इसका डिनोमिनेटर, तो कौन सा बड़ा हो गया आपका 5/12। ओके चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा। अब देखिए ये आपके न्यूमरेटर सबका सेम है, तो इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन होता है। देखिए जब आपको मैंने बताया था कि जब न्यूमरेटर सेम होगा तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो छोटा होगा। सो विच वन इज ग्रेटर, आपका 1/2 एंड विच वन इज स्मॉलेस्ट, वो है आपका 1/8। सो असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा, तो 1/8, देन 1/7, देन 1/6, 1/5, 1/3 एंड लास्ट में 1/2। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट है आपका जो बी पार्ट है, इसमें डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें क्या होगा कि आपका आप देखेंगे जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा है और जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो आपका बड़ा ही होगा। Addition and subtraction of fractions. Additions of like fractions. For adding like fractions, given rule is followed. Rule is sum of like fractions is equals to sum of numerators upon common denominator. अगर आपके like fractions है तो कैसे ऐड करेंगे। देखिए जैसे आपके पास है 4/11 एंड 3/11, डिनोमिनेटर कॉमन है तो आप सिर्फ न्यूमरेटर को प्लस करेंगे एंड डिनोमिनेटर सेम आएगा, सो 7/11। ओके, next is addition of unlike fractions. For adding unlike fractions, given rule is followed. Rule, first of all change the unlike fractions into equivalent like fractions and then add them. अगर unlike fraction है तो सबसे पहले उसे like fraction में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हम उसे ऐड करेंगे। जैसे आपके पास 9/10 एंड 5/6, 9/10 एंड 5/6, एलसीएम ले लीजिए दोनों का, एलसीएम आएगा 10 एंड 6 का 30। ओके, सो 9/10 इसे 30 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी 3 से, 27/30। इसी तरह से 5/6 इसको 30 करने के लिए 5 से करेंगे, इसे भी 5 से, 25/30। नाउ यू हैव टू ऐड दीज टू फ्रैक्शंस, 27/30 प्लस 25/30, क्योंकि अभी लाइक फ्रैक्शंस में आपके हो चुके हैं। ओके, Remember that if fractions are mixed, then first convert them into like or unlike fraction. अगर कोई भी fraction आपका mix है तो पहले आप उससे convert करेंगे like में या unlike fractions में. Okay? Addition of a whole number and a fraction number. Addition of a whole number and a fraction is done by using the given steps. Write one as a denominator under the whole number. Change them into equivalent like fractions. Write the sum of numerators as numerator and common denominator as denominator. अब आपको ऐड करना है एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन, तो कैसे करेंगे। जैसे कि आपको दिया गया है 5 और ये आपका पास है मिक्स नंबर है ना, तो 5 आपका एक होल नंबर है, जैसे आपका 5 एक होल नंबर है, इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो आप इसके नीचे 1 ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स, नहीं, next is subtraction of like fractions. For subtracting like fractions, given rule is followed. Rule, difference of like fraction is equals to difference of numerators upon common denominator. अब आपको like fractions को subtract करना है तो कैसे करेंगे। देखिए 5/13 को माइनस करना है 7/13 में से, यानी 7/13 माइनस 5/13। अगेन 7 माइनस 5, सिर्फ न्यूमरेटर को माइनस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 2/13। ओके, डिनोमिनेटर आपका कॉमन रहेगा। Next is subtraction of unlike fractions. For subtracting unlike fractions, given rule is followed. Firstly, change the unlike fraction into equivalent like fractions and then subtract them. देखिए unlike fraction के लिए कैसे माइनस करेंगे, सेम रूल है जैसे आपके एडिशन में थे कि सबसे पहले उसे like fraction करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको माइनस करना है 1/6 फ्रॉम 7/12। देखिए कैसे करेंगे, 7/12 में से आपको माइनस करना है 1/6। ओके, सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 6 इज 12। ओके, अब ये आपका ऑलरेडी 12 है, इसे आपने कुछ नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा। 1/6 इसको 12 करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऊपर भी 2 से, सो 2/12। नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट दीज टू फ्रैक्शंस, यानी कि 7/12 माइनस 2/12
is 7 minus 2 by 12, that is 5 by 12. Okay children, तो ये सेम रूल है इसमें जैसे आपका एडिशन में होता था, सेम. ओके चलिए नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ ए होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन. अब आपको एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है. ओके सो कैसे करेंगे, देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ ए होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन इज डन बाय यूजिंग द गिवन स्टेप्स. स्टेप 1, राइट 1 एज डिनोमिनेटर अंडर द होल नंबर. स्टेप 2, change them into equivalent like fractions. Write the difference of numerators as numerator and common denominator. Step 3, write the difference of numerators as numerator and common denominator as denominator. देखिए सबसे पहले जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है 11. ओके 11 माइनस 55 बाई 9. फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप इसके नीचे 1 लगा देंगे क्योंकि ये होल नंबर है. उसके बाद आपको फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है कि आप उसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस में. ओके हैव अ लुक. 11 माइनस 55 बाय 9. सबसे पहले आप इसे इसके नीचे 1 लगाएंगे डिनोमिनेटर. एलसीएम जब आप लेंगे, एलसीएम ऑफ 1 एंड 9 आपका होगा 9. सो 11 बाय 1, इसका डिनोमिनेटर 9 करने के लिए 9 से करेंगे, इसे भी 9 से. 99 बाय 9 एंड 50 बाय 9. ये ऑलरेडी इसका डिनोमिनेटर 9 है तो नो नीड टू चेंज. सो नाउ यू विल माइनस 99 by 9 minus 55 by 9. Okay, and 99 minus 55 by 9. और जब आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 44 by 9. अब देखिए ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो अब आप इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. ऐड द फॉलोइंग एंड रिड्यूस टू देयर लोएस्ट फॉर्म. आपको इनको ऐड करना है और फिर उनको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, बहुत इजी है. 3 बाय 8 प्लस 7 बाय 8, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 7 बाय 8 यानी 10 बाय 8. अब इसे आप लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे. 2 5 are 2 4 are. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म. इनको सब्ट्रैक्ट करना है जैसे कि 5 बाई 6 माइनस 1 बाई 6. 5 माइनस 1 बाई 6 इज इक्वल टू 4 बाई 6. अब आप इसे 2 से कट कर देंगे, 2 बाई 3. ओके चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 3 इज आपको फिल करना है बॉक्स को. देखिए बॉक्स प्लस 2 बाई 6 इज इक्वल टू 5 बाई 6. अच्छा 2 बाई 6 में हम कितना प्लस करें, हमें 5 बाई 6 मिलेगा. ऑब्वियसली हम इसमें कितना प्लस करेंगे, 3 बाई 6. ओके नेक्स्ट इज 2 बाई 17 में हम कितना प्लस करें, हमें 5 बाई 17 मिले तो हम करेंगे 3 बाई 17. वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस. देखिए शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ वॉल स्पेस इन हिज रूम. His sister Madhavi helped him and painted 1/3 of the wall space. How much did they paint together? एक वॉल का कुछ पार्ट शुभम ने पेंट किया और कुछ पार्ट उसकी सिस्टर ने पेंट किया, तो टोटल दोनों ने कितना पेंट किया. चलिए हैव अ लुक. शुभम पेंटेड, शुभम ने कितना पेंट किया, 2/3 ऑफ वॉल. ओके इसके बाद हिज सिस्टर पेंटेड, उसकी सिस्टर ने पेंट किया 1/3. ओके तो 2/3 किया शुभम ने पेंट, 1/3 किया उसके सिस्टर ने पेंट. और आपसे क्या पूछा गया, हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर. सो लिखेंगे दे पेंटेड टुगेदर. कितना उन्होंने पेंट किया, इसको हम करेंगे प्लस 2/3 प्लस 1/3. सो दिस इज 2 प्लस 1/3, 3/3. और जब आप इसे कट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1. यानी उन लोगों ने, दोनों ने मिलकर पूरी ही दीवार को पेंट कर दिया. ओके चलिए नेक्स्ट है एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, अ वेसल कंटेन्स 5 1/6 लीटर ऑफ मिल्क. Out of it, 3 1/2 liter milk was poured out. How much milk is left in the vessel? देखिए एक वेसल में इतना मिल्क था जिसमें से इतना मिल्क पोर कर दिया गया है, निकाल लिया गया, तो कितना मिल्क उसमें बचा. तो चलिए देखिए करते हैं. मिल्क इन अ वेसल, मिल्क
आपके वेसल में कितना है 5 1/6 लीटर। इसको साथ ही साथ हम इम्प्रॉपर में भी चेंज कर देंगे। 5 6 30 + 1 और 31/6 लीटर। मिल्क poured आउट, कितना पॉर किया गया मिल्क उस वेसल में से, कितना पॉर किया गया 3 1/2 लीटर और 7/2 लीटर। ओके, मिल्क लेफ्ट, अब कितना बचा तो माइनस करेंगे 31/6 माइनस 7/2 लीटर्स। ओके, अब आप जब दोनों का एलसीएम लेंगे 6 और 2 का, तो एलसीएम आपका 6 ही आएगा। 6, ये ऑलरेडी आपका 6 है, कोई ज़रूरत नहीं इसको चेंज करने की। इसको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 से 21। ओके, सो लीटर 21 माइनस 31 माइनस 21 10/6। आप इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसे किस तरह से करेंगे 5/3। और अभी भी ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसे आप मिक्स में करेंगे 1 2/3 लीटर मिल्क, यानी कि इतना लीटर मिल्क उस वेसल में बचा। ओके, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Vishnu studied mathematics for 3/4 hours and English for 1/2 hours. How much time did he spend on both the subjects? विष्णु ने कुछ घंटे मैथ्स पढ़ा, कुछ घंटे इंग्लिश पढ़ा, तो उसे टोटल कितना टाइम स्पेंड किया? तो चलिए करते हैं इसे। विष्णु स्टडीड मैथ्स फॉर 3/4 आवर्स। ओके, उसने 3/4 आवर्स उसने मैथ्स में स्पेंड किए। सो ये आपका कितना आ जाएगा, और इसे क्या लिखेंगे 4 4 16 + 3 19/4 आवर। ठीक है, नाउ आपसे इंग्लिश पढ़ा, विष्णु स्टडीज इंग्लिश फॉर, अब उससे इंग्लिश जो है वो कितने टाइम के लिए उसने इसको स्टडी किया 1/2 आवर्स, और इसे क्या लिख सकते हैं और 3/2 आवर। ओके, सो टोटल टाइम कितना आएगा, देखिए 19/4 + 3/2 आवर्स। ओके, एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 4, यहाँ ऑलरेडी 4 है तो ये 19 एज इट इज। यहाँ 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से, सो 6/4 आवर्स। 19 + 6 25/4। अभी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब आप इसे मिक्स में करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 1/4 आवर्स। Overview. A fraction is a part of the whole or a collection of object. Fraction whose numerators are less than their denominator are called proper fractions. Fractions whose numerators are greater than or equal to their denominators are called improper fraction. Proper fraction वो होते हैं जिनके numerators denominator से छोटे होते हैं, और improper fraction जिनके numerator denominator से बड़े होते हैं। A fraction which is a combination of a whole number and a proper fraction is called a mixed fraction. Mixed fraction आपका combination होता है एक whole number और एक proper fraction का। Fractions having same denominators are like fractions, while fractions having different denominators are unlike fractions. वो fractions जिनके same denominator होते हैं वो like fractions, and जिनके denominators different होते हैं वो unlike fractions. Two or more fractions are said to be equivalent if they represent the same value. दो या ज़्यादा fractions को equivalent तभी कहा जाता है जब उनकी value same होती है, जब वो same value को represent करते हैं. A fraction is in its simplest form if its numerator and denominator do not have any common factor other than 1. एक फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी कहते हैं जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1. इन 2 or more like fractions, the fraction with greater numerator will be greater. 2 या 2 से ज़्यादा जो like fractions हैं उनमें जिनका वो greater numerator होगा वो fraction आपका बड़ा होगा. When two fractions having the same numerator are compared, the fraction with the smaller denominator will be greater. और अगर दोनों fractions जिनका न्यूमरेटर सेम है अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो बड़ा होगा. Two fractions having different numerators and denominators are compared by making the denominator same. और दो फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर भी डिफरेंट है एंड डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, उसे कैसे कंपेयर किया जा सकता है, उसके डिनोमिनेटर को सेम करके. चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. बाकी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.